So today's our topic is networking. So what is network? ये पूरा बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन पेपर में नेटवर्किंग और पक्का आएगा इसके अंदर क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज नेटवर्किंग? द interconnected computers with central node is called network. Interconnected computers with central node is called network. So in networking we have server and some nodes. आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्वर और नोड्स. There are two terms, server and nodes. So what is the difference between server and node? Server is a place where you can store data, you can share resources, is called server. Now nodes क्या होंगे? इंडिविजुअल. ये दिख रहे हैं 4 पॉइंट 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं. ये सारे क्या है? नोड्स हैं. नोड्स मींस जहां से हम इस कंप्यूटर सर्वर को एक्सेस करेंगे. So now your first question will come to your question paper. What is a advantage of server or difference between server or nodes? There are two things. One is server and second one is node. Server is what? Central place where you can store your data is called server. And nodes from where you can access your information, you can share resources and as on. So now what is the advantage of server? You can store centrally data. So centralized data. Then second one is resources. You can share resources. ठीक है. Second, data is saved. Time sharing. ठीक है. ये सारे इसके एडवांटेज होंगे. Now your next point in computer networking. The next point is your networking devices. एक बार जरा मेरे को क्लियर करो, सभी को आवाज आ रही है और है ना ये दिखाई दे रहा है? आपने माइक ऑन करके एक बार बताओ कि दिखाई दे रहा है और आवाज भी आ रही है? यस सर. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दूंगा. वो बना के लेके आनी है तुम्हें सीबीएसई के लिए, जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसके लिए. नाउ व्हाट नेटवर्किंग डिवाइसेस वी नो. द फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज व्हाट? हब. द फर्स्ट इज हब. हब इज व्हाट? A networking device. Hub is a networking device. Hub is what? Hub is a networking device where we can connect multiple computers together. Hub कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह का पोर्ट. एक मिनट होल्ड करो. Now what is hub? इस तरह की एक मशीनरी जिसके अंदर ये पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं. ये पोर्ट्स क्या होते हैं? From here you can connect multiple computers. So same device you can use as hub. And now this is what? This is switch. This is not a hub, but hub and switch both are same. Structure wise both are same, but the device difference are there. Now next is switch. Now hub is what? A centralized device from where we can connect multiple computers.
Now you have computer number 1, 2, 3 and 4. We have 4 computers. We can join with hub. Now there is one more device, switch. Switch. The switch is a device. Now this is what? This is your switch. Now switch is an intelligent device from where you can connect multiple computers. Now what is the difference between these two? Now there is a difference between switch and hub is, now in hub you can transmit, either you can send or receive data. In hub is what? One-way communication. Hub we can use for one-way communication, where you can either send your data or receive your data. But in switch we can do both the things parallelly. Means at a time we can send or receive. At a time we can send as well as receive the data. So there is a difference between hub and switch. The first difference is in hub we can send or receive data, but in switch we can send as well as receive data at a time. Clear? Now next topic in same. This is your first difference. Second difference is in hub we have one-way communication. In switch we can use both way communication. The hub speed, next number is 3. The hub speed is less compared to switch. The next is in hub we can transmit. In hub we can transmit the data as compared to switch. Half means the bit per second, bytes per second, means the rate of sending or receiving is less as compared to switch. Okay, clear है hub और switch? hub और switch clear है आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास 1 और 2 मार्क्स के लिए होगा? अगर लास्ट टाइम पेपर में नहीं आया होगा तो इस बार ये पेपर में होगा हब और स्विच. द नेक्स्ट डिवाइस इज नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज रिपीटर. सभी ने घर पे केबल वायर देखा है? अपने हॉस्टल में देखा होगा, पहले केबल टीवी आता था और हर एक केबल टीवी के साथ एक वायर के साथ कुछ डिस्टेंस पर एक डिवाइस लगी होती है जिससे कनेक्टर के थ्रू आप नेक्स्ट वायर वापस आगे सेंड करते हैं. होता है ऐसा? बोलो, रिस्पांस भी दो. यस सर. होता है. नाउ दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज व्हाट? रिपीटर. Now what is the definition of repeater? A repeater which can repeat the data. In simple way we can write a repeater which can repeat your data. Okay, repeater क्या करता है? जो कि repeat करता है डाटा को. मगर कैसे? Repeater can receive the data and it will regenerate your data and send to another node. Means this repeater will get the data and with the same speed, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, एक ही स्पीड, जो स्पीड सपोज इसकी 100 Mbps की स्पीड से चल रहा था ये, तो ये 100 Mbps की स्पीड से आगे ट्रांसमिट करेगा, इससे ज्यादा और कम नहीं कर सकता. So repeater is what? Repeater is a device which will receive a data or receive a signal, regenerate it and send to next node. यानी वो next node को भेजना शुरू कर देगा. And next device is bridge.
ब्रिज और गेटवे। नाउ ब्रिज इज व्हाट? एक रिवर है बीच में और ये नेशनल हाईवे NH1 है। सो व्हाट इज ए ब्रिज? ब्रिज, और इधर भी NH1 है। अगर यहां से एक कम्युनिकेशन मीडियम हट चुका था, सो व्हाट इज ए रोल ऑफ ब्रिज? ब्रिज इज ए डिवाइस विच कैन communicate between two similar networks. A bridge is a device which can communicate between two similar network. Gateway. Now gateway is what? Which can connect two different network. For एग्जाम्पल देखना इसका। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ? गेटवे की साइड में देखो और बताओ कि क्या लिखा है। इंडिया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, और उसके बीच में एक गेट है। अगर हम कभी अमृतसर जाते हैं ना, तो वहां उसके बीच में गेट बना हुआ है, बॉर्डर, जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं। और वो जो गेट है, सो गेटवे इज व्हाट? This is one country, another country. Now, to communicate between two different countries, we have one gate. So same thing is gateway. For gateway, we have what? Two dissimilar networks. Suppose we are going to connect two dissimilar network, we can connect through gateway. So to connect two dissimilar network, we can connect through gateway. आपके पास इस वाले चैप्टर, इस वाले टॉपिक के अंदर से पक्का आपके पास 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होंगे इन 5 डिवाइसेस के अंदर से। क्लियर? द नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स the formation of network. The formation of network is called network topology. The formation of network. Formation of network means first computer is here. Now we have second computer, third computer, fourth computer, and fifth. Now, is it possible to identify which type of network is this? बोलो कौन सा नेटवर्क है ये? 10th में भी पढ़ा था हमने। बोलो कौन सा नेटवर्क होगा ये? अभिषेक शर्मा है यहां पर? अस्पन? Yes, sir. Which type of network is this? So once again, what is network topology? A network topology means the formation of network is called network topology. Now here we have first network topology is called star. This one is star. ये कैसे बनता है स्टार? अगर मैं सेंटर के अंदर एक सेंटर प्लेस है और उससे सारे मैंने कनेक्ट कर दिए, this will form star. Here also we have star topology where we have center, hub or switch. We have one hub or switch. यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, यहाँ पे hub और switch होगा. We can connect computers through hub or switch. So all the computer directly connected with center, hub or switch is formed this star topology. क्लियर है या वापस बताएं? आंसर देना शुरू करो। क्लियर है या वापस शुरू करें? अगर हमारे पास सेंटर के अंदर जो हब और स्विच है, सपोज मैंने ये स्विच ले लिया और डायरेक्टली एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, सपोज इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से कनेक्ट कर दिए,
सो ये मैंने इसके बीच में रख दिया और कंप्यूटर इसके साइड में ये सारे कनेक्ट कर दिए। दिस विल फॉर्म स्टार टोपोलॉजी। ये क्या बनाएगा? स्टार टोपोलॉजी बनाएगा। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंटर के अंदर हब और स्विच होगा। फर्स्ट कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद, और फिर फोर्थ कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद हब और स्विच, फिफ्थ कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विद हब और स्विच, थर्ड एंड सेकंड। हो गया क्लियर? यानी सारे किससे कनेक्ट होंगे? बीच में जो रखा हुआ स्विच है उससे। सो ऑल दी कंप्यूटर्स डायरेक्टली, इफ ऑल दी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेंटर नोड और सेंटर हब और स्विच, ये जो सेंटर में डार्क किया हुआ है ये हब और स्विच होगा, इससे अगर कनेक्टेड होंगे तो ये बनाएगा क्या? स्टार फॉर्मेशन। नाउ एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे? फर्स्ट एडवांटेज इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी अगर मेरे को थर्ड से फोर्थ के पास कोई डेटा भेजना है तो मैं इस स्विच के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट किससे हो जाऊंगा? इस स्विच के थ्रू मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा किससे? नंबर 3 से 4 तक। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर मैं 3 से 4 तक कनेक्ट होना चाहता हूं तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्टेड विद थ्रू सेंटर नोड। So first is directly communication, second one is fault। अगर fault आती है, अगर कोई भी fault होती है इसके अंदर, so we can check। Suppose my second computer is not working, इस पे नेटवर्क के साइन नहीं आ रहे, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो वायर है वो खराब हो गया। अगर थर्ड कंप्यूटर खराब है तो मैं इसका वायर क्या करूंगा? रिप्लेस कर दूंगा और न्यू वायर डाल दूंगा। क्लियर? यानी सेंटर नोड से हमको कम्युनिकेशन करने में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। देन थर्ड इज टाइम सेविंग। नेक्स्ट वन इज टाइम सेविंग। हाउ यू कैन सेव द टाइम? इन स्टार, इफ वी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद one PC to another, it will take less time to travel your data। क्लियर? तो ये हमारे हो गए एडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द कॉस्ट। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कॉस्ट। इफ वी आर यूजिंग one wire for one computer, its cost will increase। इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे मैं वायर डालना शुरू करूंगा एक एक कंप्यूटर के लिए। सपोज ये भी कंप्यूटर 100 मीटर पे, ये भी 100 मीटर पे और दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो भी हमें एक एक वायर अलग अलग देना पड़ेगा और वायर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सेकेंड वन इज वी कांट इंक्रीज द नोड। मीन्स अगर वी कांट इंक्रीज द पोजीशन ऑफ नोड्स इन सेम नेटवर्क और इन सेम प्लेस। यानी सपोज देखो यहाँ पे 4 नंबर है आपके पास, एक 4 नंबर कंप्यूटर से मेरे को 5th नंबर कंप्यूटर कनेक्ट करना है नेक्स्ट वाला आगे इसी की सीरीज में, तो मैं वो नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो मेरा सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गया? वी कांट इंक्रीज, वी कांट एक्सपेंड द नोड। क्लियर? तो ये है मेरे डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब जिसको ये पहले समझ में नहीं आया वो बताओ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करेंगे। एनी डाउट? बोलो स्टार टोपोलॉजी के लिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एनीथिंग, एनी डाउट? सर एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो। देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है पहले नवीन, डायग्राम दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ एडवांटेज। यस सर। ये मेरा सेंटर हब और स्विच है, ये जो बीच में लाइंस बनी हुई है ना, ये सेंटर हब और स्विच है। ये नंबर 3, 4 और ये सारे कंप्यूटर्स है। नाउ फर्स्ट एडवांटेज इज यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद नेक्स्ट नोड। सपोज मेरे को यहां पर
नमित है और इस वाले नोड पर नेक्स्ट अभिषेक है। अगर अभिषेक को कोई फाइल नमित को भेजनी है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा किससे? थ्रू हब और स्विच, यानी वो किसके थ्रू चला जाएगा? वो कुछ ऐसा होगा तो वो पहले अपने हब को भेजेगा और हब आगे क्या ट्रांसमिट कर देगा? नेक्स्ट वाले नोड को कम्युनिकेट कर देगा। क्लियर? तो ये तो हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फॉल्ट रेक्टिफिकेशन, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन मींस सपोज माय 3 नंबर इज नॉट वर्किंग, सपोज इसके बीच में इसका वायर डिस्कनेक्ट हो गया, वायर टूट गया है, तो मेरे को पता चल जाएगा इन बिटवीन देयर इज ए फॉल्ट, वी कैन चेंज द वायर। ठीक है, तो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। मगर डिसएडवांटेज क्या हो गए? फर्स्ट डिसएडवांटेज इज सपोज ऑल द नोड्स आर नियर बाय, देन आल्सो वी कांट एक्सपेंड। तो माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्सपेंशन ऑफ नोड्स। एक्सपेंशन मींस मैंने 3 इस नोड से यानी स्विच से लेकर एक तार डाल दिया 4 नोड तक, और 4 से 5 पे मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। मेरे को क्या करना होगा? इसके लिए भी एक तार अलग से डालना पड़ेगा और इसके लिए भी, और सभी को डायरेक्टली किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? हब और स्विच से। सो माय कॉस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या हो गए? कॉस्ट विल इंक्रीज and we can't expand the node. Clear? और किसी को Yes. डाउट? किसी और को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। So my next network topology is, यहां पे मेरे पास स्टार है और स्टार में क्या है? एक सेंटर स्विच और हब बना हुआ है, जिससे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 हमने 4 नेटवर्क बना रखे। क्लियर? दिखाई दे रहा है कि सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी पता चल गई कि क्या होती है। नाउ नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। स्टार के अंदर सेंट्रल डिपेंडेंसी है, यानी अगर मेरा स्विच काम नहीं कर रहा तो कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा। बस के अंदर क्या होगा? सपोज इसके डिसएडवांटेज जो स्टार के थे वो सारे एडवांटेज होंगे किसके? बस के लिए। अब बस के लिए फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? ऑल द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ बस इज ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विथ सेंट्रल बैकबोन, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विथ सेंट्रल बैकबोन और अ कॉमन वायर, and we have two terminators at the end of this wire. ठीक है, यानी सारे के सारे नोड्स, जितने भी नोड्स हैं वो सारे किससे कनेक्टेड हैं? इस सेंटर वायर से। क्लियर? अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे? वी कांट एक्सपेंड, ये नंबर 5 हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो नंबर 5 गलत हो जाएगा अगर एक्सपेंड करेंगे स्टार में। बट इन बस टोपोलॉजी वी कैन एक्सपेंड नंबर 5। यानी कैसे एक्सपेंड करेंगे? एक वायर कॉमन इसके लिए आ गया और हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दिस विल फॉर्म व्हाट? बस टोपोलॉजी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में डिफरेंस पता चल रहे हैं? ये स्टार के जो डिसएडवांटेज है वो बस ने एडवांटेज बना लिए। मींस नाउ सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वी हैव वन सेंट्रल वायर विथ ऑल वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया बस टोपोलॉजी।
आपके पेपर के अंदर जो आते हैं वही दोनों आते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, दो फॉर्मेशन आपको बनानी होगी। सो नाउ एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी all nodes are connected with central backbone और central wire, यानी ये जो सेंटर में वायर है इससे सारे नेटवर्क कनेक्टेड है। So my cost will reduce, ये एडवांटेज हो गया, कॉस्ट विल रिड्यूस। इसके अंदर स्टार के अंदर कॉस्ट ज्यादा थी, इसके अंदर क्या हो गया, रिड्यूस हो गई। नाउ नेक्स्ट, we can expand the nodes. Suppose 4 और 5 को एक ही वायर से कनेक्ट करना है, we can expand the nodes. Clear? So now advantage, जो इसके disadvantage थे वो इसके advantage हो गए। Now disadvantage of bus topology. The first disadvantage, we can't the rectification, the fault rectification is not possible. अगर सपोज इस पर्टिकुलर वायर के अंदर ये वायर टूट गया है यहां से, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि बस टोपोलॉजी में सारा किस पर डिपेंडेंट है, इस बैकबोन पे। सो सेकंड डिसएडवांटेज, ऑल नोड्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल लाइन और सेंट्रल बैकबोन। all nodes are dependent on central line और wire। clear? तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टार और बस फॉर्मेशन कैसे होता है। now how we can transmit data in bus topology? suppose from first computer we have to send data to third। यहां पर थर्ड पे है नमित और यहां पर है अस्पन। Now from Aspan to Namit we are going to send our data. So what will happen? This first the data will move from here to backbone, then it will check the IP address of 2. If this node is for Namit, then it will deliver your data. Otherwise again it will travel to next node. So it means it will check all the nodes, whatever is there between this line, it will check all the nodes and then afterward it will transmit your data. But suppose जैसे अस्पन ने यहाँ से कोई डेटा भेजा था, नमित ने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, now what will happen? Your data in this wire, your data is in this wire. So what is the role of terminator? If we are not getting any proper IP address, then automatically this will terminate your process. Clear? Yes sir. कोई डाउट है? Yes, sir. बस वाले में भी कोई डाउट है तो बोलो, फिर हम इसको रब करेंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। Any doubt? आप सभी को आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही? एक बार मेरा सभी अपनी अटेंडेंस दो, कुछ को छोड़कर। ऋषि मिश्रा बोलो, जो यहाँ पर प्रेजेंट है बोलते जाओ फटाफट। अपना नाम बोलो। यश यादव। ठीक है, नेक्स्ट। यश यादव। नेक्स्ट। अशपन। ठीक है, नेक्स्ट। गोपाल। ओके, नेक्स्ट। नमित। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। मनीष। तनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई नहीं है? ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज बस। क्लियर हो गया, स्टार भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज
ring. Next one is ring topology. In ring topology, if your first node is connected with two neighbor nodes, if your one node is connected with two neighbor nodes, then it will form ring. अब देखो फर्स्ट वाला यानी सभी नोड्स को दो दो नोड से कनेक्ट होना है, तो क्या अभी रिंग बन गई? चेक करो, देखो फर्स्ट वाला नोड क्या सेकंड से कनेक्टेड है? आंसर दो। फर्स्ट नोड सेकंड से कनेक्टेड है? Yes, sir. यस सर। अब फर्स्ट नोड थर्ड से भी कनेक्टेड है, Yes, sir. Yes, sir. मगर सेकंड फर्स्ट से कनेक्टेड, थर्ड भी फर्स्ट से कनेक्टेड है, मगर बाकी से कनेक्टेड नहीं है। सपोज यहाँ पे फोर्थ नंबर और है, नंबर 4 भी है। नाउ दिस फर्स्ट नोड कनेक्टेड विद सेकंड नोड कनेक्टेड विद फोर्थ नोड connected with second or third, then it will form a ring. Means a node should be connected with two neighbor nodes. ऐसा नहीं कि वो एक इससे हो गया और एक फोर्थ नंबर से हो गया, टू नेबर नोड से कनेक्टेड होना चाहिए और सारे दो दो नोड से कनेक्टेड होने चाहिए, तब बनाएंगे ये रिंग टोपोलॉजी. नाउ द एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, नाउ वी हैव टू पाथ टू डिलीवर योर डेटा. अगर सपोज मेरी लाइन यहां से ब्रेक हो गई तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं यहां से ब्रेक कर देता हूं लाइन को और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूं तो क्या कौन सी कनेक्टिविटी बनेगी? ये रिंग बनेगी या कोई और? नमित अरोड़ा बोलो. अगर ये वायर मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, रिपीट करना. क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंप्लीट रिंग को मैंने यहां से बीच में से डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिए दो, अब ये कौन सा बनेगा कनेक्शन? बस. ये बस टोपोलॉजी बन जाएगी. और रिंग टोपोलॉजी का मेन रूल ही यही है कि सारे नोड आपस में कनेक्टेड होने चाहिए. कम से कम कितने? आपस के दो नोड को कनेक्ट करना चाहिए. तो यानी अब ये पूरा कंप्लीट रिंग बन गया. सपोज माय दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट वर्किंग, सो इट विल चेक सपोज फ्रॉम 1 to 4 नंबर पे कोई डाटा भेजना है या 1 से लेके 3 नंबर पे कोई डाटा भेजना है, तो 1 से 3 नंबर के लिए एक वे तो 2 और 4 को चेक करके होगा और दूसरा वे क्या होगा? यहां से हम डायरेक्टली 1 से लेके 3 पे डेटा भेज देंगे. सो वी हैव टू डिफरेंट वेज टू ट्रांसमिट योर डाटा. सो इन रिंग टोपोलॉजी क्लियर हो गया रिंग. नाउ लास्ट वन इज फुल्ली कनेक्टेड. फुल्ली कनेक्टेड. Now in fully connected network, all the nodes यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, मेरे पास 4 नोड्स हैं. सारे नोड एक दूसरे से सभी से कनेक्टेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप किसी को भी छोड़ दोगे. यानी सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड होंगे. So this will complete create your fully connected node. Fully connected network. Now come to your next important part. Your next is IP address. Your next is IP address. ये वाला टॉपिक पक्का आपकी कॉपी के अंदर, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा फॉर 1 मार्क. 1 मार्क के लिए ना या तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का डिफरेंस आएगा या कुछ ऐसा आएगा. 192.168.1.1 is given. What is this? बोलो क्या चीज है ये? 192.168.1.1. This is what? बोलो क्या चीज होगी? IP address. IP address. यानी IP address will contain
0 to 255 numbers, 0 to 255 numbers. अब 0 से लेके 255 यानी फर्स्ट ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय डॉट। ये किससे सेपरेट होंगे? डॉट से सेपरेट होगा। अब आईपी एड्रेस कैसे बनेगा? We can write 0 to 255 numbers, means you can write like 192. Then next is again 0 to 255, 168. 0.0. This is what? Your one IP address. 192.168.0.0 is what? One IP address. Next is MAC address. ये आईपी एड्रेस कौन सी मशीन्स के लिए बनता है? विंडोज मशीन्स के लिए। आईपी एड्रेस कहां पे काम में आता है? जहां पे विंडो मशीन होंगी। अब मैक एड्रेस, मैक एड्रेस A4 कोलन्स SA A5 TY AZ1 A1. Now this is what? A4AS. This is what? The combination of numbers and a character. The combination of number and character separated by these colons, and the number of this MAC address is 6. Now first three is for what? Manufacturer ID. First three denotes your manufacturer ID and last three for card number. First three for manufacturer ID और last three for card number. क्लियर? तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में जो पेपर में आएगा वो ऐसा होगा, यू हैव वन कंप्लीट मैक एड्रेस. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट थ्री एंड लास्ट थ्री. क्लियर? क्लियर? सर एक और क्वेश्चन आ सकता है 192.255.256.0. ये वाला दिखाई दे रहा है आपको सारा पूरा 192.255.256.0. Is this IP address is correct or wrong? Is this IP address is correct or wrong? Yes Yadav? रॉन्ग सर. रॉन्ग. यश यादव क्या गलती है इसमें? इसमें एक चीज की गलती है. दोबारा बोल दो. 192.255.256.0. Is this IP address is correct or wrong? क्या ये सही है गलत है? गलत है सर. इसके अंदर क्या गलती है? इसके अंदर एक 256 नंबर आ गया. 256. 255 now. We have one range from 0 to 255. Clear? 256 पे हम उसको नहीं ले सकते. Now for next 1 mark is you have to identify which is MAC address और IP address. क्लियर हो जाएगा? जो नंबर से शुरू होंगे पूरे और 4 डिजिट बनाएंगे, यानी for 192 डॉट, फिर नेक्स्ट नंबर 255 डॉट, 256.0. This is your IP address. This is what? MAC address. Clear? जो क्वेश्चन पेपर में आना है वही हम करना शुरू कर रहे हैं. क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है तो बोलो. सर 255 इंक्लूड होगा? देखो 0 से लेके 255 तक हम ले सकते हैं. 0 से लेके 255 तक हमारी रेंज होती है. अगर जैसे 256 हो गया तो हमने क्या कर दिया, उस रेंज को क्रॉस कर दिया और ये आईपी एड्रेस रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा आईपी एड्रेस करेक्ट क्या बनना चाहिए?
19, अगर मेरे को बनाना है 255.255.255 एंड 0.255, मैंने क्या बना दिए 255.255.255 डॉट एंड देन लास्ट अगेन 255। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे क्या बन गए आईपी एड्रेस। दिस वन इज करेक्ट, मगर 256 होते क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट अबाउट मैक एड्रेस? मैक एड्रेस इज व्हाट, द टू कैरेक्टर्स which can contain one alphabet or one number, the two characters which can contain a character as well as a number। तो देखो यहां पर दो दो के ग्रुप बने हुए हैं, एक ये वाला, एक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। क्लियर? तो और कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए 6 ग्रुप which separated by these colons, which separated by these colons is called MAC address। Clear? Clear? Yes, sir. Next question for you, what is domain name? Domain name, अगर बोर हो जाओगे ना तो बता देना पहले। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम इज www.google.com। this is what the website address। so the web address on website is called domain। और अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं http:/, अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं http:/www.google.com, तो ये क्या बन गया मेरे पास डोमेन नेम रेजोल्यूशन। यानी वेब सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट का क्या नाम होगा, दैट इज व्हाट domain name resolution। now what do you mean by domain and domain name resolution? a domain is a website address। you have, suppose ये पूरा दिया हुआ है, now you have to find out domain। so what is domain? this www.google.com is your domain। and what is domain name resolution? the complete web address, the complete web address on web server with corresponding IP address is called domain name resolution। now listen once again, the web address on website with corresponding IP address, corresponding IP address means suppose ये website इस IP address से भी खुलती है, ये IP address कहां पे होगा, वेब सर्वर पे। ये कहां होगा, वेब सर्वर पे। now what do you mean by domain name resolution? the website address and its corresponding IP address on web server is called domain name resolution। या तो domain name आएगा आपके पास क्वेश्चन पेपर में, या domain name resolution आएगा for 1 mark। this is for now 3 marks। क्लियर? 3 मार्क्स हमने कंप्लीट कर दिए इसमें। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें, डोमेन और डोमेन नेम रेजोल्यूशन? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो www.google.com दिख रहा है, यहां से पढ़ना शुरू करो यश, पूरी लाइन, ये वाला जो ब्रैकेट में है http://www.google.com। ये दिया है। सपोज आपको पूछा है कि नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई डोमेन नेम, सो व्हिच इज योर डोमेन नेम? द नेम ऑफ योर वेबसाइट इज कॉल्ड डोमेन नेम। ठीक है, तो नेम ऑफ वेबसाइट इज www.google.com। तुम ऐसे थोड़ी लिखते हो कभी जब सर्च करते हो, तुम ऐसे नहीं लिखते http://
www.google.com ऐसे नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एक मिनट वेट करो जरा, तो गेट खोलने दो। ओके, अब देखो इस वेबसाइट पे http://www.google.com, हम वेबसाइट पे कभी भी ये नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, google.com डायरेक्टली ये लिखते हैं और सर्च कर देते हैं, ऑटोमेटिक उसके बाद ये क्या बन जाता है, http://www.google.com। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है www.google.com, दिस इज व्हाट, डोमेन नेम, एंड http which will connect your website, this http will create the corresponding IP address on web server, the http will create the corresponding IP address on web server. This http will get the corresponding IP address on web server, is called, for the same website is called domain name resolution. Clear? Yes, sir. यश यादव, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो यानी ये वाला आपके जितने भी नोट्स में भेजूंगा उसके अंदर ये सारे दिए हुए होंगे, ना आपको ये बनाने होंगे क्वेश्चंस भी मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडियम। Transmission medium means how you will transmit your data from your computer to another computer. कैसे कैसे कर सकते हैं, बोलो, ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है? अगर सपोज हमारे पास एक वीडियो है, अगर मेरे को ट्रांसमिट करनी है तो मैं उसको कैसे ट्रांसमिट करूंगा, नेटवर्क पे। बोलो, नमित अरोड़ा, नमित सर अपलोडिंग से नहीं, अगर मेरे को नेटवर्क पे अपलोडिंग करना, नहीं अपलोड नहीं करना है, मेरे को ट्रांसमिशन करना है, यानी मैं अपने कंप्यूटर लैब में बैठा हूं, मेरे को एक थ्रू वायर और वायरलेस, तो हमारे पास देखो, जब तुम्हारे पास कोई भी फाइल है, अगर यू आर गोइंग टू सेंड टू अनदर वन, या ग्रुप में भेजना चाह रहे हो, तो कैसे करते हो, व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप पे भेजते हो या शेयर से भेजते हो? यस सर। होता है। तो शेयर इट से अगर मैं शेयर करता हूं तो कैसे कम्युनिकेशन होता है? क्या कोई वायर लगाना पड़ता है? कोई वायर लगाना होता है उसके बीच में? नो सर। नहीं, वो कैसा होता है, वायरलेस। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को नेट चलाना है मेरे कंप्यूटर पे, पीसी पे, तो मैं क्या करता हूं, एक वायर जोड़ देता हूं उस पे। तो एक ट्रांसमिशन मीडियम तो क्या हो गया, वायर्ड, और सेकंड वन इज वायरलेस। फर्स्ट वन इज वायर्ड, सेकंड वन इज वायरलेस। दो ट्रांसमिशन मीडियम मेरे को पता है। अगर मैं वायर से करूंगा तो वायर्ड, और वायरलेस करना चाहता हूं तो वायरलेस। अब फर्स्ट ट्रांसमिशन, सपोज आपको अपने मोबाइल से कंप्यूटर में कुछ डेटा कॉपी करना है, तो क्या करोगे, एक वायर लोगे उसका यूएसबी वाला, अपने उसमें फोन में लगाओगे और ट्रांसमिशन कर दोगे। अदरवाइज सेकंड वे इज
You can use Bluetooth or transmit your data. So there are two ways. Means we have wired also as well as wireless transmission. Now come to your wired transmission. So your first wire is, in wire transmission we have two types of wire transmission. One is shielded or unshielded. एक होता है shielded और सेकेंड वन इज unshielded. अब shielded वायर और unshielded कौन सा होगा? फर्स्ट वायर इज यश यादव, यस सर। ये वाला वायर देखा हुआ है ना? यस सर। कहां पर? बहुत चाहिए देखा सर। तनिष, अच्छा अस्पन को तो पता होगा। अस्पन ये वाला वायर देखा है? कब Yes, यूज sir. आता है? मगर कभी कभी यूज आता है जब ज्यादा आती हो जाती है। दिस इज व्हाट ट्विस्टेड पेयर केबल। हमारी लैब के अंदर ये नेटवर्क केबल की तरह लगा हुआ है। ट्विस्टेड पेयर केबल, वहां पर उस वायर को जब हम छीलेंगे ना, उसके अंदर ऐसे वायर आपस में दो वायर ट्विस्ट हो रखे होंगे एक दूसरे से। सो दैट इज व्हाट ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर? ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ इन ट्विस्टेड पेयर केबल वी कैन यूज फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए तो सारे वायर आएंगे यूज में, मगर फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल वेयर वी विल फाइंड द वायर्स इन ट्विस्टेड मोड। यानी कितने ग्रुप बन जाएंगे? 1 2 3 and 4. We will find 4 pair of twisted wire together is in this twisted pair cable. Now shielded और unshielded wire कैसे होते हैं? अगर इसका outer, this is what outer cover और ये वायर है, और इस वायर के अंदर भी क्या होगा? एक इंसुलेटर या कंडक्टर होगा। क्लियर? जो ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। नाउ दिस आउटर कवर, अब इस आउटर यानी इस प्लास्टिक कवर को जैसे ही रब करेंगे सारे वायर दिखना शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट अनशील्डेड। और शील्डेड कैसे होंगे? इस वायर के बाहर, अब देखो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ऊपर वाला जिसको मैंने डार्क कर दिया है, this is what outer cover. Inside you will find some wire mesh or insulators. You will find wire mesh or insulator. That is what shielded. जो किससे शील्ड हो रहे हैं ये वायर? ये इस पर्टिकुलर वायर मैश से कवर है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और अनशील्डेड मींस जिसके अंदर केवल डायरेक्टली एक प्लास्टिक कवर के थ्रू हमने वायर उसके अंदर डाल रखे हैं। दैट इज व्हाट नॉर्मल और अनशील्डेड पेयर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर? ट्विस्टेड पेयर केबल क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलिए। यस सर। अच्छा, अब लास्ट के 2 और टॉपिक बस, उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। योर नेक्स्ट टॉपिक, योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ट्विस्टेड पेयर केबल। The advantage of twisted pair cable is the cost. This wire cost is as compared to other network cable is less. ठीक है, the cost is less. तो ये क्या हो गया? इकोनॉमी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए काम में आ सकता है।
ये क्वेश्चन पेपर में आएगा भी, मैं बताऊंगा कैसे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल वी कैन यूज टू क्रिएट or to set up LAN connectivity within an area. Through twisted pair cable we can create LAN connectivity within the area with lower cost. The next one is coaxial. Coaxial cable. नेक्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कैसा होगा? एक ब्लैक कवर, मेरे को बताना है कौन सा वाला वायर होगा। एक ब्लैक आउटर इंसुलेटर, व्हाइट कलर इंसुलेटर, सॉरी देखो, सबसे पहले आउटर ब्लैक कवर, देन वायर मैश, बहुत सारी वायर मैश होगी, देन यू विल फाइंड व्हाइट कलर इंसुलेटर एंड देन कॉपर वायर। नाउ विच टाइप ऑफ एंड वेयर यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ केबल? बताओ कहां पर होगी ये? ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में होगी। कहां होगी बताओ? मेरे पास एक ऐसा वायर ढूंढो, अपने पूरे घर में ढूंढ लेना, मिल जाएगा, जिसको जो ब्लैक कलर का होगा उसको अगर थोड़ा सा कट करोगे उसके अंदर वायर मैश निकलेंगे, उसके सेंटर के अंदर व्हाइट कलर का एक इंसुलेटर होगा और एक कॉपर वायर आ रहा होगा, सिंगल वायर, एक कॉपर वायर होगा उसके अंदर। सर जो हम मतलब डिश टीवी टाटा स्काई वगैरह जो टाटा स्काई के अंदर लगाते हो, ये आपकी केबल कनेक्शन होता है ना, वो ये केबल कनेक्शन है, केबल कनेक्शन का वायर है। सो नाउ दिस यू विल फाइंड इन टू ट्रांसमिट केबल कनेक्शन डेटा। सो नाउ दिस टाइप ऑफ केबल वी कैन यूज टू टेलीकास्ट टीवी सिग्नल्स। ये किसके लिए काम में आता है? टीवी सिग्नल्स के लिए काम में आता है। क्लियर? एंड लास्ट वायर is now last wire connection is optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर वर्क करता है? ग्लास टाइप कम्युनिकेशन मीडियम पे। नाउ इन ऑप्टिकल फाइबर वी हैव आउटर कवर and each and every group of glass wires covered in one separate cover is called optical fiber। optical fiber कैसा होगा? optical fiber सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा। optical fiber क्या होगा? सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा, और उसके बाद नेक्स्ट उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? अब एक चीज सुनो, सारे प्रेजेंट है? भी प्रेजेंट है सभी अभी? यस सर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो इसका। नाउ इन योर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड 2 मार्क्स क्वेश्चन वेयर यू हैव टू सेलेक्ट one transmission medium from the given list. Now what is, you have to find out, suppose you have one company and you are going to launch network within your company, but your economy is less. Which type of transmission medium you can use? बोलो कौन सा?
You have a company. सुन लो वापस क्वेश्चन. You have a company. You are going to create a network or create a LAN network within your company, but your economy. You have to check your economy also. So which type of wire you can use to create a LAN? Twisted pair cables. ट्विस्टेड पेयर केबल. यानी जहां पर इकोनॉमी आ गई वहां ट्विस्टेड पेयर केबल. सपोज यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद, योर क्वेश्चन इज यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद इकोनॉमी बट यू रिक्वायर्ड स्पीड. सो विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यू कैन यूज? Optical fiber. Optical fiber. Suppose you have one TV company through which you are going to broadcast your data. So which type of cable you Coaxial can cable. use? Then coaxial cable. Clear? Clear? अभी किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम हमारी क्लास को खत्म करते हैं.